Good afternoon once again, ladies and gentlemen. सादर नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगी कि कृपया बैठ जाएं. I would like to request everybody to kindly take their seats as we are just about to officially welcome our esteemed dignitaries on stage. Ladies and gentlemen, my name is Shobha Rana. I am the host for ITCX 2025. It gives me immense pleasure and joy to welcome all of you to International Temples Convention and Expo 2025, that is ITCX 2025, in this lovely city of Tirupati. Let's start this wonderful evening with a big round of applause, everybody. I want to see the energy in this audience. Can you show me your energy with a round of applause? May I request all the people who are standing in the front, who are crowding the place, to please settle down. Hello, good. I would request all the media personnel and everybody who is standing in the front to kindly take their seats or kindly disperse around the venue so that we clear off the initial. Ladies and gentlemen, once again, a very good evening to all of you and welcome to the International Temples Convention 2025. My name is Shobha Rana. I am your host for this fantastic evening and this event, and it gives me great privilege and joy to introduce and invite on stage our esteemed dignitaries. First up, I would like to request and invite the presence of Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri N. Chandrababu Naidu ji. Ladies and gentlemen, please put your hands together. Welcome Honorable Chief Minister, Andhra Pradesh, Shri N. Chandrababu Naidu. Welcome, sir. Thank you for taking out time and joining us here at ITCX 2025. Namaskar and Swagatam. I would like to invite the Honorable Chief Minister of Maharashtra, Shri Devendra Fadnavis ji, to kindly join us on stage. Ladies and gentlemen, please welcome sir with a thunderous round of applause. Please welcome Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant ji, to join us on stage. Dr. Pramod Sawant, Honorable Chief Minister of Goa. Welcome, sir. Please welcome Central Minister and Minister of State for New and Renewable Energy of India, Shri Shripad Naik ji. Please welcome him with a big round of applause. Ladies and gentlemen, Shri Shripad Naik. Please welcome spiritual leader and scholar Shri Acharya Govindadev Giriji Maharaj on the stage. Please welcome sir. Swagatam and Namaskar sir. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. Please welcome Joint General Secretary RSS Shri C.R. Mukunda ji on stage. Namaskar, Swagatam. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Honorable Minister, Andhra Pradesh, Anagani Satya Prakash ji. Anagani Satya Prasad ji, we request you to be with us on stage. Please welcome Honorable Minister of Technology and Cultural Affairs, Maharashtra, Shri Ashish Shelar ji. Ladies and gentlemen, please put your hands together as we welcome Sir on stage. Please welcome Minister of Health of Goa, TCP Forest, Urban Development, Women and Child Development Minister, Shri Vishwajit Rane. Please welcome Vishwajit Rane ji on the dais, ladies and gentlemen. Our esteemed dignitaries are joining us one after the other on the esteemed dais.
and we are extremely delighted and privileged to welcome all of you to the International Temples Convention and Expo 2025. Following the order, I would now like to request Minister for Tourism, Information Technology, Electronics and Communications and Printing and Stationery, Goa, Shri Rohan Kaunteji, to kindly join us on stage. Please put your hands together as we welcome Shri Rohan Kaunteji. Please welcome Member of Maharashtra Legislative Council, Shri Praveen Darekarji, on the stage. Welcome, sir, and thank you for taking time. Please welcome Chairman TTD, Shri B.R. Naiduji, on stage. Welcome, sir. Please welcome Chairman ITCX MLC Maharashtra, Shri Prasad Ladji. Welcome, sir. And Founder ITCX and Temple Connect, Shri Giresh Vasudev Kulkarni ji. Lastly, I would like to invite Principal Advisor, International Temples Convention and Expo 2025 and Founder, Antodaya Pratishthan, Srimati Neeta Ladji. Ladies and gentlemen, let's give a resounding round of applause to everybody, all our esteemed dignitaries who are here on stage. Extend a very warm welcome to them. Thank you so much, sirs and ma'ams, for taking out time and joining us here today at ITCX 2025. It means a lot to us that you made time and graced this wonderful event with your kind presence. Moving ahead, ladies and gentlemen, now is the time for something very special. आज के दिन की शुरुआत के लिए हमारे साथ हैं पुणे से आए सुप्रसिद्ध युवनाद ढोल ताशा पाठक। इनके ढोल की गरज हर एक दिल को उत्साह से भर देती है और इनके ढोल ताशा का तालमेल आप सभी के लिए आज यादगार साबित होगा। सो तैयार हो जाइए एक शानदार स्वागत के लिए, क्योंकि जब युवनाद बजेगा तो सिर्फ आवाज नहीं, एक परंपरा इस हॉल में आज गूंजेगी। अब समय आ गया है गणपति बाप्पा का स्वागत करने का। आज गणेश स्थापना के साथ सुख और समृद्धि का आगमन हो रहा है इस प्रांगण में। गणपति बाप्पा, जब बाप्पा आएंगे अपने साथ अपनी कृपा, प्रेम और आशीर्वाद भी लेकर आएंगे। तो एक बार फिर से हो जाए गणपति बाप्पा। प्लीज वेलकम युवनाद एंड गणेश स्थापना ढोल ताशा पाठक। धन्यवाद। वेंकटरमणा गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा, भक्तवत्सला गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा, लक्ष्मी रमणा गोविंदा श्रीनिवासा गोविंदा। बोलो जय श्री राम।
बहुत बहुत धन्यवाद युवनाथ का। और अब मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब पुजारी जी आशीर्वचनों के साथ एक छोटे से पूजा समारोह के साथ शुरुआत करेंगे आज के इस पावन दिन की, इस पावन शाम की। हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं पुजारी महाराज जी, जो कि आशीर्वचनों के साथ गणपति बप्पा की स्थापना करने के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम का आह्वान करेंगे। मैं पुजारी जी से आग्रह करना चाहूंगी कि आशीर्वचनों के साथ, शुभ आशीर्वचनों के साथ आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। इंटरनेशनल टेम्पल्स कन्वेंशन 2025 का यह समारोह, और हम उद्घाटन ऑलरेडी कर चुके हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे साथ मंच पर पुजारी महाराज जी मौजूद हैं और अब ईश्वर स्तुति के साथ, आशीर्वचनों के साथ आज के इस पावन कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। मैं आग्रह करूंगी पुजारी महाराज जी से कि वे अपने आशीर्वचनों के साथ ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीमुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। श्रीमहागणपतये नमः। श्रीमहागणपतये नमो नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। महागणपतये नमो नमः। ध्यान आवाहनादि षोडशोपचार पूजां समर्पयामि। आज के इस शुभ अवसर की मंगलमय शुरुआत हम दीप प्रज्वलन के साथ करेंगे। ये दीप प्रज्वलित होकर संकल्प को शक्ति देगा और हमें उत्तम कार्यों के लिए प्रेरित करेगा। Ladies and gentlemen, we would like to mark the official and auspicious beginning to ITCX 2025 in the holy light of the lamp. For the lamp lighting ceremony, I would like to respectfully invite our esteemed dignitaries whose presence today adds great honor to this occasion. I request Shri N. Chandrababu Naidu ji, Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Devendra Fadnavis ji, Honorable Chief Minister of Maharashtra, Shri Pramod Sawant ji, Honorable Chief Minister of Goa, Shri Shripad Naik, Central Minister and Minister of State for New and Renewable Energy of India, Shri C.R. Mukunda ji, Joint General Secretary RSS, Shri Prasad Lad ji, Chairman ITCX MLC Maharashtra, Shri Giresh Vasudev Kulkarni ji, Founder ITCX, and Acharya Govindadev Giriji Maharaj ji to join us with other distinguished dignitaries for the lamp lighting ceremony. देवियों और सज्जनों, इस पावन दीपक की रोशनी में दिशो दिशा मानो हि गुंसीज्जातवेदो गामस्वं पुरुषं जगत्
अभिप्रदग्नागहि श्रिया मा परिपालय जातवेदसे सुनवामसो ममराति यतो निदहाति वेदः सनः परुषदति दुर्गानि विश्वानावेव सिन्धुन्दुरिताद्यग्निः तामग्निवर्णाम् तपसा ज्वलन्तीम् वैरोचनीम् कर्मफलेषु जुष्टाम् दुर्गाम् देवीं शरणमहम् प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः तद्विष्णोः परमम् पदगुम् सदा पश्यन्ति सूरयः दिवेव चक्षुराददम् तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवागुम् सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमम् पदम्. In the holy and auspicious light of this lamp, we invoke and seek the blessings of the Almighty. इस पावन दीप के प्रकाश में हम आह्वान करते हैं, स्तुति करते हैं परमपिता परमेश्वर की कि वे हम पर अपनी शुभाशीर्वाद बनाए रखें और ITCX 2025 एक बहुत ही सार्थक और सफलतापूर्वक कार्यक्रम रहे. Thank you very much, sirs and ma'ams, for doing the honors. Ladies and gentlemen, on this special occasion, let's take a moment to honor our esteemed guests as a heartfelt gesture of gratitude and respect. I would request Shri Prasad Lad, Chairman ITCX MLC Maharashtra, and Shri Giresh Vasudev Kulkarni, Founder ITCX and Temple Connect, to felicitate the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Government of India, Shri N. Chandrababu Naidu ji. Ladies and gentlemen, with a thunderous round of applause, let's welcome Shri N. Chandrababu Naidu ji to ITCX 2025. Thank you very much, sir, Minister, sir, Chief Minister, sir, for taking the time out and joining us here today. Ladies and gentlemen, Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri N. Chandrababu Naidu ji. Thank you very much, sir, once again for taking out time and joining us here today. Thank you, sir. I would now like to invite Shri Prasad Lad, Chairman ITCX MLC Maharashtra, and Mrs. Neeta Lad, Principal Advisor ITCX 2025 and Founder Antodaya Pratishthan, to felicitate Honorable Chief Minister of Maharashtra, Government of India, Shri Devendra Fadnavis ji. सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने बहुमूल्य समय में से समय निकालकर आज हमें ITCX 2025 के समारोह में ज्वाइन किया. Ladies and gentlemen, a big round of applause, जोरदार तालियां हो जाएं. Honorable Chief Minister of Maharashtra, Shri Devendra Fadnavis ji. I would now request Shri Giresh Vasudev Kulkarni, Founder ITCX and Temple Connect, and Mrs. Neeta Lad, Principal Advisor, International Temples Convention and Expo 2025, and Founder Antodaya Pratishthan, to felicitate the Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant ji. Sir, thank you very much for taking out time and joining us here at ITC 2025. It is only our second edition, and the kind of trust, support, and love that all of you have shown us is truly gratifying. Thank you very much, sir, for taking out time and joining us here today. I would now request Shri Prasad Lad to felicitate Shri C.R. Mukundaji, Joint General Secretary for RSS. Sir, we would like to officially welcome you to our ITCX 2025. Thank you, sir, for joining us. Next, I would request Shri Giresh Vasudev Kulkarni ji to felicitate Shri Shripad Naik, Central Minister and Minister for State for New and Renewable Energy of India. Welcome, sir.
Thank you for joining us. Welcome and many gratitude to you, sir. May I request Srimati Neeta Lord to felicitate Minister of Technology and Cultural Affairs, Maharashtra, Shri Ashish Shelar ji. Thank you very much, sir, for taking out time and joining us here today. Thank you very much, sir. Next, I would request Shri Giresh Vasudev Kulkarni to felicitate Shri Acharya Govindadev Giriji Maharaj, spiritual leader and scholar, for blessing ITCX 2025. Thank you very much, Acharya ji, for taking out time and joining us here. देवियों और सज्जनों, हमारे साथ हैं श्री आचार्य गोविंद देव गिरिजी महाराज, जो कि एक स्पिरिचुअल लीडर और स्कॉलर हैं, और आज हमें यहाँ ITCX 2025 में अपने शुभ आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। Now I would request Shri Prasad Lord, Chairman ITCX MLC Maharashtra, to felicitate Shri Anagani Satya Prasad ji, Honorable Minister for Andhra Pradesh. Thank you, sir, for making time and joining us here today. Thank you and welcome, sir. I would now like to invite Srimati Neeta Lord to kindly felicitate Shri Vishwajit Rane, Minister of Health of Goa, TCP, Forest, Urban Development, Women and Child Development. Welcome, sir. Welcome, sir. I would now like to request Shri Giresh Vasudev Kulkarni to kindly felicitate Shri B.R. Naidu ji, Chairman of TTD. Swagatam, Suswagatam to ITC 2025, sir. Thank you, sir, for joining us. I would now invite Shri Prasad Lord ji to kindly felicitate Minister for Tourism, Information Technology, Electronics and Communication, and Printing and Stationery, Goa, Shri Rohan Kaunte ji. Welcome, sir. I would now like to request Srimati Neeta Lord to kindly felicitate Shri Praveen Darekar ji, Member of the Maharashtra Legislative Council. Ladies and gentlemen, we have Meghna Bodekar ji, who is a Minister for State of Maharashtra, joining us here. Welcome, ma'am. It is such a pleasure to have you here. I would request Srimati Neeta Lord ji to felicitate ma'am also and welcome her to ITCX 2025. Ladies and gentlemen, we have our esteemed dignitaries on stage. आज ITCX 2025 को अपना आशीर्वाद और सपोर्ट, अपना सहयोग देने के लिए हमारे साथ आप सभी लोग यहाँ पधारे हैं। आप सभी का भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ। Ladies and gentlemen, let's put our hands together for all of our esteemed dignitaries on stage and everybody who is joining us here in the audience at the ITCX 2025. Ladies and gentlemen, आज का जो ये समारोह है, ITCX 2025 का जो ये मेला है, ये बहुत ही भव्य है और बहुत ही शुभ है। आज पूरा ITCX परिवार इस बात से बहुत गर्व अनुभव कर रहा है कि इस साल के इस शुभ आरंभ में हमें स्वयं भारतवर्ष के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी से आशीर्वाद पत्र मिला है। आप सभी की अनुमति के साथ, आप सभी के आशीर्वाद के साथ मैं यह पत्र पढ़कर सुनाना चाहूंगी।
Ladies and gentlemen, it is so heartening to receive the blessings of the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, on the occasion of ITCX 2025. And here is the letter and the message from the Prime Minister himself. I would like to read it out before all of you. The Prime Minister writes, "It is heartening to learn about the International Temples Convention and Expo ITCX 2025, organized by Temple Connect at Tirupati. The Temple City provides the perfect backdrop to host the summit and expo. This initiative to bring together thousands of temple trustees, administrators, and stakeholders from diverse backgrounds such as Hinduism, Buddhism, Jainism, and Sikhism will help promote new learnings, adopt best practices, and tackle key challenges in day-to-day temple management and operations. Our places of worship have made a substantial contribution towards preserving literature, art, culture, and architecture, and have stood as a testament to our nation's culture and society. The 21st century belongs to the knowledge-driven societies, ladies and gentlemen. It is particularly in this context that the efforts of Temple Connect to document, digitize, and share the rich heritage acquire to the greater significance. May such effort showcase our rich spiritual heritage and build bridges between tradition and modernity. ITCX reflects the inherent quality and unity in diversity of temples globally and is in a way a celebration of the spirit of Vasudhaiva Kutumbakam, visualization of the entire earth as one family, Vasudhaiva Kutumbakam. May the vibrant deliberations at the ITCX 2025 lead to new pathways on a wide array of issues related to temple ecosystem. Best wishes for the success of the convention and the expo. This is the letter we received from the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. Ladies and gentlemen, we would like to thank Prime Minister, sir. और इसके साथ साथ ये हमारा परम सौभाग्य है देवियों और सज्जनों कि आज ITCX 2025 को इतने महान व्यक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, जिनमें से कई सारे हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री ही नहीं, बल्कि परम पूज्य सारा संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी ने भी एक अपना आशीर्वाद वार्ता भेजी है। आप सबसे निवेदन है कि स्क्रीन की तरफ ध्यान दें और उनका ये वीडियो मैसेज देखें। May we please play the video on the screen. टेम्पल कनेक्ट इस नाम से सनातन परंपरा के पूरे विश्व में फैले हुए मंदिरों की संयुति जो 2 वर्ष पूर्व से कार्य कर रही है, उसकी परिषद अब तिरुपति में होने जा रही है। पिछले एकत्रीकरण से अब तक कुछ प्रगति हुई है। मंदिर पहले भारतवर्ष के समाज के सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, सामाजिक केंद्र हुआ करते थे। मंदिरों के प्रति अपार श्रद्धा सभी सनातन परंपरा के मानने वालों में आज विद्यमान है। यह समय समय पर अनेक उदाहरणों से दृग्गोचर होता है और इसलिए आज की अवस्था में भी मंदिरों का यह जो कार्य है वह कुछ अंशों में सर्वत्र संपन्न होता हुआ दिखाई भी देता है, परंतु आज की विश्व की अवस्था में सनातन धर्मियों को अपने जीवन से विश्व को कुछ संदेश देने हैं,
कुछ उपाय दिखाने हैं। उसके लिए उनको तैयार करने का काम केंद्र बनकर मंदिरों के द्वारा जैसे पहले होता था वैसे होना चाहिए, और इसलिए सभी मंदिरों की यह संयुति आपस के सहयोग के आधार पर मंदिरों को इस कार्य के लिए सशक्त करने के लिए काम करती है। ये बहुत ही औचित्यपूर्ण कार्य चल रहा है। इस दृष्टि से अभी 2025 में संपन्न होने वाली यह परिषद विचार करेगी, आगे बढ़ेगी और अपने कार्य में चलते चलते सर्वथा यशस्वी होगी, यह विश्वास है। मैं इस परिषद के आयोजन में लगे सभी को शुभकामना देता हूं, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अनेकानेक धन्यवाद परम पूज्य सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी का। आपके विचार तो हर राह को रोशन कर देते हैं। हम इस सफर की शुरुआत में आपकी आशीर्वाद वार्ता के लिए आभारी हैं, कृतज्ञ हैं। आगे बढ़ते हुए देवियों और सज्जनों, इट इज माय प्रिविलेज टू इंट्रोड्यूस अ डिस्टिंग्विश्ड लीडर जिनकी वजह से ये ITCX 2025 का कार्यक्रम पॉसिबल हो पाया है। प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग Shri Prasad Lard ji, Chairman of ITCX and MLC Maharashtra, एक ऐसे लीडर जो गवर्नेंस, कल्चरल हेरिटेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को साथ लेकर चलते हैं। टेम्पल प्रिजर्वेशन के उनके बुलंद इरादे के साथ उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीलेंस हम सभी के लिए प्रेरणा का प्रदीप है। चलिए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं श्री प्रसाद लाड जी का। स्वागत है। सभी आए सनातन धर्म के भक्तगण मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ ऊपर कर कर बोलेंगे, वेंकटरमणा गोविंदा गोविंदा, भक्तवत्सल गोविंदा गोविंदा, लक्ष्मी रमणा गोविंदा, श्रीनिवासा गोविंदा। बोलो जय श्री राम, बोलो जय जय श्री राम। सनातन हिंदू धर्म की जय, सब संतन की जय। अब सब बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। आज इस तिरुपति बालाजी मंदिर के पावन धरती पर आयोजित इस मंदिर के महाकुंभ में मैं आप सभी का तहे हृदय से स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में, इस राज्य में इस कार्यक्रम करने के लिए हमें जो शक्ति दी, हमें जो आशीर्वाद दिया, वो इस राज्य के मुख्यमंत्री, एनडीए के नेता, सम्माननीय जनप्रिय मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो मेरे मार्गदर्शक रहे हैं, जिनके आशीर्वाद से हमेशा राजनीति के पैर चढ़ने का काम किया है, वो महाराष्ट्र के जनप्रिय मुख्यमंत्री, मेरे मार्गदर्शक, महाराष्ट्र सेवक, जिन्हें महाराष्ट्र में देवा भाऊ के नाम से जाना जाता है, वो हमारे सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। गोवा के ऊर्जावान दूरदर्शी मुख्यमंत्री सम्माननीय डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। आज इस मंच पर हमें मार्गदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहकार्यवाह मुकुंद सियार जी, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। माननीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री सम्माननीय श्रीपाद नाइक जी यहाँ पर हमें मार्गदर्शन करने के लिए आए, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता, भाजपा मुंबई के अध्यक्ष, मेरे मित्र और सांस्कृतिक तथा आईटी मिनिस्टर सम्माननीय आशीष शेलार जी का भी मैं तहे दिल से यहाँ पर स्वागत करता हूँ। इस मंच पर उपस्थित गोवा के अर्बन डेवलपमेंट फॉरेस्ट मिनिस्टर सम्माननीय विश्वजीत
राणे जी का भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। सम्माननीय पर्यटन मंत्री रोहन कुंटे जी का मैं स्वागत करता हूं। व्यासपीठ पर उपस्थित यहाँ पर आई हुई मेरी बहन राज्य की मंत्री मेघना बोर्डीकर जी का स्वागत करता हूं। इस तिरुपति बालाजी टेम्पल ट्रस्ट के सम्माननीय अध्यक्ष जी, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। सम्माननीय विधान परिषद के गठन नेता प्रवीण दरेकर जी का स्वागत करता हूं। और सबसे स्वागत नहीं करते हुए आशीर्वाद गोविंद जी महाराज का लेता हूं, और गोविंद जी महाराज हमें आशीर्वाद देंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। मुख्यमंत्री जी, मेरी 4-5 दिन से तबीयत खराब है। मैं स्टीरॉइड पे आके यहाँ पर काम कर रहा हूं। इस भव्य कन्वेंशन में जिन्होंने बहुत ही मेहनत की, उनका नाम मैं कैसे भूल सकता हूं। मेरे सहकारी IT6 के जनरल सेक्रेटरी श्री गिरीश कुलकर्णी जी का भी हम सभी लोग ताली बजाकर स्वागत करें। इस IT6 को जिन्होंने सभी तरीके से मदद करने की हमेशा कोशिश की, इस IT6 की एक मेंबर मेरी पत्नी श्रीमती नीता लाड जी का भी मैं यहां पर स्वागत करता हूं। इस आशा कन्वेंशन सेंटर में लगभग 17 देशों के प्रतिनिधि और हिंदुस्तान के सभी राज्य के प्रतिनिधि यहां पर उपस्थित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, लगभग 1581 लोगों ने फिजिकली रजिस्ट्रेशन यहां पर किया हुआ है, और आपके राज्य में यहां पर इनकी व्यवस्था इतनी अच्छी तरीके से आपके माध्यम से हुई है कि ये सभी लोग मुझे तो कह रहे थे सुबह से कि चंद्रा बाबू जी का हम आभार कैसे प्रकट कर सकते हैं। इन सभी की रहने की व्यवस्था, दर्शन की व्यवस्था TTD के अध्यक्ष के माध्यम से इतनी अच्छी तरीके से आने वाले 2 दिनों में होने वाली है, तो सभी लोग बहुत ही उत्साहित और प्रफुल्लित यहाँ पर है। मैं इस IT6 के पार्श्वभूमि को माननीय देवेंद्र जी 5 मिनट में बताना चाहता हूँ। यह IT6 की पार्श्वभूमि सिर्फ 2023 की नहीं, आप तो जानते ही है, लेकिन माननीय NDA नेता और मुख्यमंत्री चंद्रा बाबू जी को, सम्माननीय गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद जी को और व्यासपीठ के सभी बैठे हुए महाव्यक्तियों को मालूम होना चाहिए। इसकी शुरुआत सर मैं 2005-2006 में महाराष्ट्र में मैं जब मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर का विश्वस्त था, तब मैंने इसे शुरुआत किया था। और उस समय रामदेव बाबा जी ने और तब की केंद्रीय मंत्री रेणुका चौधरी जी ने उसका उद्घाटन किया था। कैलाशवासी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख जी ने तब मुझे इस बारे में सहकार्य भी किया था। और वो 2 साल चले हुए IT6 के कन्वेंशन में पहले साल में 380 मंदिर आए, दूसरे साल में 590 मंदिर आए। फिर मालूम नहीं क्या हुआ, मुझ पर आरोप लगाए गए कि मैं धर्म का, सनातन धर्म का प्रचार करता हूं और इस विषय को मुझे बंद करना पड़ेगा, और मैंने वो विषय को बंद कर दिया। लेकिन हमारी जीत बड़ी थी। गिरीश जी, मैं और नीता ने सातत्य से इस विषय को आगे ले जाने का बीड़ा ही उठा लिया था, और हमने सोच लिया था कि मंदिर व्यवस्था को हमें बहुत अच्छी तरीके से दुनिया के सामने लाना है। माननीय देश के प्रधानमंत्री जो विकसित भारत का सपना देखते हैं, वो विकसित भारत के सपने को अगर इस मंदिर के नए विषयों के साथ अगर जोड़ा जाए, तो मुझे लगता है विकसित भारत का सपना और बड़े पैमाने पे लोगों के सामने आने में मुझे बहुत बड़ी मदद होगी। जिस तरीके से हमने इसका नाम राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन रखा है, अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन रखा है, लेकिन मुझे कहते हुए बहुत ही गर्व महसूस होता है कि इस सम्मेलन में सनातन धर्म के सभी लोग, फिर हिंदू मंदिर हुए, बुद्ध विहार हुए, गुरुद्वारे हुए, हरे राम हरे कृष्णा के इस्कॉन टेम्पल हुए, स्वामीनारायण टेम्पल्स हुए, अनेक धर्मों के पंथ के मंदिर और मठों का भी इसमें सहभाग हो गया। और ऐसे कई तरीके से लोग पिछले 15-20 सालों में हमने जोड़ने की कोशिश की। गिरीश जी ने लगभग 30 देशों में प्रवास कर यहाँ पर लोगों को जुड़ाने का काम किया। आज इस IT6 के सम्मेलन में
भले ही 1581 लोग आए हैं, लेकिन लगभग हमें रिक्वेस्ट की थी लगभग 6000 लोगों ने। लेकिन रहने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था सभी देखते हुए जिन लोगों को पिछले समय बुलाया नहीं गया था, उन लोगों को यह समय बुलाने की कोशिश हमने इस माध्यम से की है। और मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है कि हम ये जो विचार लेके आगे बढ़े, वो विचारों को मैंने 2018 में महाराष्ट्र के तभी के मुख्यमंत्री और अभी के भी मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी के सामने रखा, और देवेंद्र जी ने मुझे तत्काल कह दिया कि इस विषय को आपको आगे बढ़ाना है। हमने फिर से पूरी सिस्टम को रीऑर्गेनाइज किया, उसे आगे ले जाने का प्रयास किया, और एक भारत पे ही नहीं तो पूरे दुनिया के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आ गया जो था कोविड का। तो वो 2 सालों में हम कुछ कर नहीं पाए। फिर हमने देवेंद्र जी के साथ विचार विनिमय करने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सरसंघ चालक मोहन जी भागवत जी के साथ ये विषय को जाके चर्चा की, और उन्होंने तत्काल मेरे दूसरे ही मिनट में कहा कि इस विषय को आगे बढ़ाना है, और इस विषय के उद्घाटन के लिए मैं स्वयं आ रहा हूं। और उस समय हमने बहुत ही सोचकर भगवान शिव ने जो नगरी बनाई थी, जहां पर त्रिवेणी संगम होता है, उस काशी में 2 साल पहले ये ITCX का हमने ओपनिंग किया था। और मुझे लगता है एक बहुत ही भव्य दिव्य ऐसा ITCX का ओपनिंग काशी विश्वेश्वर धाम में हुआ था। इस 3 दिन के चले कार्यक्रम में तब भी माननीय प्रधानमंत्री ने प्रशंसा की थी। माननीय देश के गृह मंत्री सम्माननीय अमित शाह जी ने भी इसकी प्रशंसा की थी। मैं एक चीज इसमें कहना चाहूंगा, कोई भी चीज जो लोगों को समझे, समस्या को समाधान दे, और लोगों के बीच में लोगों ने जाके काम करने की होगी, उसे होने के लिए हर समय वक्त काफी जाता है। मुझे आज भी विश्वास है इस दूसरे सम्मेलन में 3 राज्य के 3 मुख्यमंत्री इस व्यासपीठ पर बैठे हैं। यही ITCX की सबसे बड़ी उपलब्धि आज हमारे लिए यहाँ पर है। हमने राम मंदिर का भी संघर्ष देखा। 503 साल के बाद माननीय मोदी जी के नेतृत्व में राम मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। वैसे ही मुझे आज भी पूरा विश्वास है कि ITCX के माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन के माध्यम से जिस विषय को मैं आगे ले जाना चाहता हूं, उस विषय को आगे जाकर पूरे हिंदुस्तान के ही नहीं तो पूरे 57 देशों के मंदिर इसे साथ में लेकर करेंगे, और भारत की इकोनॉमी के साथ दुनिया की इकोनॉमी को भारत की इकोनॉमी से जुड़ाएंगे। ये मेरा पूरा आत्मविश्वास है। माननीय देवेंद्र जी, माननीय चंद्रा बाबू साहब, हमने इस ITCX में प्रमुखता से मंदिर फेडरेशन के माध्यम से 10 विषयों को आगे लेने की कोशिश की। हम सभी जानते हैं कि तिरुपति टेम्पल हो, शिरडी टेम्पल हो, महालक्ष्मी टेम्पल हो, वैष्णो देवी टेम्पल हो, पशुपतिनाथ हो, या हिंदुस्तान का या दुनिया का कोई भी बड़ा टेम्पल हो, हर जगह पर प्रशासन और वित्तीय प्रबंधन की व्यवस्था होनी जरूरत होती। लोग प्रशासन में और वित्तीय व्यवस्था में थोड़े डगमगा जाते हैं। इस सम्मेलन में कल और परसों के दिन में एक्सपर्ट्स आके प्रशासन को कैसे मजबूत करना है, तिरुपति मंदिर के विश्वस्त आके यहाँ पर बात करेंगे कि उनकी व्यवस्था कैसी अच्छी है, शिरडी के व्यवस्था वाले बताएंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए, और उसमें से छोटे से बड़े सभी लोग एक साथ मिलकर इस व्यवस्था को लेकर आगे बढ़ेंगे। दूसरा विषय है कानूनी व्यवस्था। कानूनी व्यवस्था में कई जगह पर कई जमीनें मंदिर विश्वस्त व्यवस्था की होती है, जिसके ऊपर एनक्रोचमेंट होती है, जिसके ऊपर कई तरीके बाधाएं होती है। मैं इस माध्यम से, इस फेडरेशन के माध्यम से, अगर ऐसे कई मंदिर की व्यवस्था में मंदिर फंसे हुए हैं तो उन्हें कानूनी मदद कर कर, सरकारी मदद कर कर उन्हें इसमें से किस तरीके से मदद हो सकती है, इस विषय के ऊपर आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। हम हमेशा एक चीज सभी लोग जानते हैं, दुनिया के कोई भी अगर हम गुरुद्वारा में चले गए तो वहां पर लंगर की व्यवस्था 24 घंटे 365 दिन होती है, और उस लंगर व्यवस्था को देखकर अब हिंदुस्तान के कई मंदिरों ने लंगर व्यवस्था की। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले ITCX में
लंगर व्यवस्था के ऊपर एक बहुत अच्छा सेमिनार रखा था और उसके बाद लगभग हिंदुस्तान में 160 से ज्यादा मंदिरों ने लंगर की व्यवस्था शुरू की। ये हमारी ITCX 1 की पहली उपलब्धि है जिसका मुझे अभिमान है। मंदिर, आज हम माननीय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ तिरुपति मंदिर गए। वहां की स्वच्छता, सुरक्षितता और पवित्रता देखकर बहुत ही दिल प्रसन्न हो गया। भगवान को देखकर तो प्रसन्न होता ही है, लेकिन भगवान जिस परिसर में बैठते हैं वो परिसर भी स्वच्छ होना चाहिए, वो परिसर सुरक्षित होना चाहिए, वो परिसर में पवित्रता होनी चाहिए और सारी चीजें उसके दरबार में हर कोई समान है, ये चीज भी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। इस विषय के ऊपर भी यहाँ पर चर्चा होगी। और सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ करने जा रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, वो है C2C की, कॉमन मैन टू कॉमन मैन। कॉमन मैन का पैसा अगर कॉमन मैन तक पहुंचेगा तो इस दुनिया की और देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त होगी। अगर हम हर मंदिर, पूरे हिंदुस्तान में 1 लाख से भी ज्यादा मंदिर है, अगर हम 25 से 50 हजार मंदिरों तक पहुंच पाए और उन मंदिरों ने अगर उनकी माध्यम से वैद्यकीय चिकित्सा सुविधा का काम किया तो गांव में कोई भी गरीब उसके इलाज के लिए उसके पास पैसा नहीं है कभी कह नहीं सकेगा। अगर उस व्यवस्था ने, मंदिर की व्यवस्था ने या गुरुद्वारे की व्यवस्था ने अगर कई बच्चों को एजुकेशनली अडॉप्ट किया तो मुझे लगता है हिंदुस्तान में कोई भी बच्चा बिना सीखे रह नहीं पाएगा। अगर हमने बुक बैंक के जैसे अनेक उपक्रम अगर यहाँ पर शुरू किए तो मुझे लगता है हिंदुस्तान में साक्षर हिंदुस्तान जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है वो पूरा होने में हमें मदद मिलेगी। इसके अलावा AI टेक्नोलॉजी का वापर होगा, मीडिया का होगा, सोशल मीडिया का होगा। हमें हमारे धर्म को, हमारे सनातन धर्म को, हमारे मंदिर को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ अच्छी बातें हम कर सके उसे हम करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बारे में कल सेशन होंगे। और उसके अलावा भी अगर हर मंदिर सौर ऊर्जा के ऊपर चलेगी, आज श्रीपाद नाइक जी यहाँ पर आए हुए हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर भी है, तो मैं केंद्र से भी दरखास्त करूंगा कि अगर मंदिर इसमें बहुत तरीके से अगर आगे आए और केंद्र सरकार इसे मदद करे तो हमें बहुत ही इसमें फायदा होगा। मैं इसी माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि इस देश को बलशाली भारत, विकसित भारत, शक्तिशाली भारत, सामर्थ्यशील भारत बनाने के साथ साथ धर्म शक्ति के साथ जुड़ा हुआ भारत अगर हम बनाएंगे तो मुझे लगता है धर्मो रक्षति रक्षिता। जब हम धर्म के साथ रहेंगे तो धर्म हमारे साथ रहेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 2047 में जिस माननीय देश के प्रधानमंत्री विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, उस सपने को पूरा करने के लिए हम कोशिश करेंगे। मैं फिर से एक बार तिरुपति बालाजी को प्रणाम कर कर, महानुभावों को नमस्कार कर कर मेरे वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद श्री प्रसाद लॉर्ड जी। आपका विजन और डेडिकेशन टेम्पल गवर्नेंस एंड प्रिजर्वेशन का एक अटूट फाउंडेशन है और ITCX को हमेशा आगे बढ़ाता है। We deeply appreciate your contribution to ITCX 2025 and beyond. Ladies and gentlemen, honored guests, as we move forward in this inspiring journey, अब समय आ गया है to know more about our mission here at the International Temples Convention and Expo. Let's turn our attention to the screen for a film showcasing our journey. So India is all set to rise, not to dominate the world, but to motivate the world and inspire the world. तो आइए दुनिया भर के मंदिरों की पवित्रता को संरक्षित रखने की हमारी इस यात्रा और उत्सव में हमारे साथ शामिल हो जाए। स्वागत है आपका इस बार तिरुपति में। ये था ITCX 2025 का मिशन और विजन। और आगे बढ़ते हुए चलिए स्वागत करते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व का जिन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी,
में लीडर होने के साथ साथ संस्कृतियों की सुरक्षा का प्रयास सदैव जारी रखा। प्लीज वेलकम श्री आशीष शेलार जी, Minister of Cultural Affairs and Information Technology, Maharashtra, and our guest of honor, with a huge round of applause, ladies and gentlemen. Please welcome Shri Ashish Shelar ji. Please. इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेंशन एंड एक्सपो 2025 के इस कार्यक्रम में उपस्थित आंध्र प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मान्य चंद्रबाबू नायडू जी, मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और हमारे देवा भाऊ सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, गोवा के हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहसर कार्यवाह श्री CR मुकुंद जी, मंच पर उपस्थित ITCX के फाउंडर गिरीश कुलकर्णी जी, मेरे मित्र और गोवा के मंत्री विश्वजीत राणे जी, सम्माननीय स्वामी गोविंदगिरी महाराज जी, श्री रोहन खोटे जी, श्रीमती मेघनाथई बुर्डीकर जी, श्री आसमान सत्यप्रसाद जी और इस कार्यक्रम के आयोजक प्रसाद लाड जी, प्रवीण दरेकर जी, नीता प्रसाद लाड जी, श्री BR नायडू जी और उपस्थित सभी मंदिर और उससे संबंधित सभी भाई और बहनों, मेरे दृष्टि से आज का ये कार्यक्रम हिस्टोरिकल भी है और पायस भी है। ये ऐतिहासिक भी है और धार्मिक इस प्रकार का एक पावन कार्यक्रम है। और उसकी वजह स्पष्ट है कि प्रयागराज में महाकुंभ एक तरफ चल रहा है, वो अपने श्रद्धा का महाकुंभ है, और आज तिरुपति में यहाँ पर एक मंदिरों का महाकुंभ चल रहा है, वो भक्ति का महाकुंभ है। और इसके लिए इस भक्ति के महाकुंभ में मैं आप सबका यहाँ पर स्वागत करता हूँ। आद्य शंकराचार्य जी ने ये कहा था कि मुक्ति के मार्ग 3 हैं, एक ज्ञान है, दूसरा कर्म है और तीसरा भक्ति का है। कलयुग में इस मुक्ति के मार्ग में जाने के लिए भक्ति का मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, ये मानने की परंपरा पूरे भारतवर्ष में काफी तेजी से बढ़ती चली गई। अब उस भक्ति का मार्ग, उसका माध्यम क्या होगा? तो उसका माध्यम एक निराकार इस प्रकार के शक्ति को साकार करना, उस निराकार को साकार करना ये मूर्ति स्वरूप में होगा, और उस मूर्ति की रक्षा पूजन ये करने की व्यवस्था ये मंदिर होगी। और इसके लिए एक प्रकार से बड़ा समाज ये मानता है मोक्ष और मुक्ति के लिए जाने वाले भक्ति मार्ग की मूर्ति की स्थापना और उसका माध्यम ये मंदिर है। दोस्तों, उस भक्ति मार्ग में मंदिर में उत्पत्ति स्थिति लय ये एक निराकार व्यवस्था को शक्ति की व्यवस्था में प्रतिष्ठित और प्रतिष्ठापित करने का प्रयास अपने सभी पुरखों ने किया, और शक्ति का संचय यानी आपका और हमारा मंदिर, और वहां जाकर उत्पत्ति स्थिति लय की शक्ति का अनुभूति लेना, इस प्रकार की व्यवस्था इस मंदिर और शक्तिपीठ के माध्यम से लगातार चलती रही। दुर्भाग्य ये रहा, कलयुग में आते आते अनेकानेक प्रकारों से, अनेकानेक विकारों से शक्ति स्थल मंदिर और शक्तिपीठ उसकी विटंबनाएं और तकलीफें ज्यादा पैदा हुई। मैं ये इसके लिए कह रहा हूं कि मेरे दृष्टि से इस प्रकार के हमारे मंदिर और शक्तिपीठ
इसके शक्ति संचय के शुद्धिकरण का पहला काम अगर किसी ने किया तो मैं मानता हूं हमारे नवनाथों ने किया और उन्होंने इस प्रकार के पूरे देश भर के शक्तिपीठों को शक्ति संचय में परिवर्तित किया। और मैंने ऐतिहासिक और पावन इसके लिए इस कार्यक्रम को कहा क्योंकि प्रसाद जी, कुलकर्णी जी और आप सब ने जो नवनाथों ने दिया हुआ मार्ग था मंदिर और शक्तिपीठों के शुद्धिकरण का और शक्ति संचय का और उसके व्यवहार का, उसका अगला काम करने की व्यवस्था अगर हिंदुस्तान में पहली बार सार्वजनिक रूप में किसने की तो हमारे इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेंशन एंड एक्सपो ने की। इसके लिए मुझे लगता है मैं आप सबका यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ। स्वाभाविक है इस कन्वेंशन में हम व्यवस्थापन के साथ अर्थशास्त्र भी चर्चा करें, लेकिन पवित्र और शुद्धिकरण की बातों को लेकर हमारे पुरखों ने शुरू किया हुआ काम और गति से आगे बढ़ाए। इतना ही निवेदन देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्री आशीष सेलार जी। आपका विजन और लीडरशिप हमें इंस्पायर करता है और हमारे कल्चर को प्रिजर्व करता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आगे बढ़ते हुए ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम सांस्कृतिक संरक्षण और संगठनात्मक नेतृत्व के क्षेत्र में अग्रणी और अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व को सुनने जा रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सहकार्यवाह माने जॉइंट जनरल सेक्रेटरी श्री CR मुकुंद जी का। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम श्री CR मुकुंद जी फॉर अ स्पेशल एड्रेस। वेलकम सर। इस पवित्र और बृहत आयोजन में मंच पर उपस्थित आंध्र प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी, महाराष्ट्र के सम्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, गोवा राज्य के सम्माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद जी और हम सबको आशीर्वचन देने के लिए मंच पर उपस्थित पूज्य महाराज जी, गोविंदगिरी जी, मंच पर उपस्थित सभी राज्य और केंद्र के सम्माननीय मंत्रिवर्य और इस आयोजन के पीछे का चिंतन और क्रियान्वयन में लगे हुए प्रसाद जी, गिरीश जी और अन्य सभी बंधु भगिनी और इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए देश विदेश से आए हुए भक्त और मंदिरों के बारे में श्रद्धा रखने वाले सभी बंधु भगिनी, मैं यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिनिधि के नाते खड़े हूँ। तो संघ के इस विषय के बारे में जो मार्गदर्शन तो परम पूजनीय सरसंघ चालक जी मोहन जी भागवत जी वीडियो द्वारा दे दिया है और इसका जब उद्घाटन हुआ 2 साल पहले स्वयं वो उपस्थित भी थे, तो मैं केवल उसको ही आगे पढ़ाते हुए मुझे दिए गए समय में 4 बिंदु आपके सम्मुख रखना प्रयास करता हूँ। एक विषय, ये सभी अपने मंदिर देवस्थान जिसके आधार पर इस धरती पर खड़े हैं और कार्य कर रहे, वो अपना श्रद्धा उसके बारे में। दूसरा है अपने सक्षम और पुरातन आर्थिक स्थिति से, आर्थिक दृष्टि से जो जिसको हम कह सकते हैं सबल, ऐसा मंदिरों का दायित्व। तीसरा, मंदिरों का सामाजिक भूमिका। चौथा, आज इस युग में जो देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने अपना संदेश में कहा है, नॉलेज एज में या उससे आगे बढ़ते हुए अभी AI
दुनिया में हम आ रहे हैं उसमें तंत्रज्ञान का, टेक्नोलॉजी का उपयोग कितना हम कर सकते हैं। मुझे दिए गए समय में ये चारों बातें संक्षेप में आपके सम्मुख में रखता हूं। पहला बात तो हम जो भी करेंगे टेम्पल कनेक्ट के द्वारा और ऐसा ही बहुत सारे प्रयास इस कालखंड में जो चल रहा है, हमारा मुख्य बात तो जो मंदिरों के बारे में श्रद्धा है उसको और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए और हजारों सालों से मंदिरों के द्वारा पुण्यार्जन करके अपना व्यक्ति और परिवारों का विकास के लिए जो आज तक पद्धति हमारा प्राचीन समाज में चलते आए उसको और भी सक्षम करने का होना चाहिए। मैं एक छोटा सा घटना आपके सम्मुख लाने का प्रयास करता हूँ। इट हैपेंड इन 1830s और 40s। उस समय में कर्नाटक से एक बुजुर्ग दंपति काशी गए। हम सभी जानते हैं काशी में आज भी कितना श्रद्धा से और पुण्य संपादन के लिए लोग जाते हैं। वो दोनों पति पत्नी काशी में गए। 3-4 महीने पैदल ही जाना पड़ा। उस समय तो साधन संचार तो ऐसा ही था। वहाँ 2-3 महीने रहे। वापस आने के समय उनके पास पैसा नहीं था, तो उनको जो परिचित थे वहाँ परिवार, उनसे उन्होंने कर्जा ली कुछ रुपया। तो जिन्होंने दिया इनसे पूछा आप क्या प्लेज करते इधर? तो वृद्ध दंपतियों ने कहा हमारा पुण्य हमने जो संपादन किए इसको हम यहाँ प्लेज करते। पुण्य कहाँ रहता है किसी को मालूम नहीं, उसको कोई रूप नहीं है, केवल श्रद्धा से हमको पुण्य को मानना पड़ता है। लेकिन पूरा अपना हिंदू सनातन संस्कृति ये पुण्य पाप ये दोनों का कल्पना के आधार पर चलते आए, समाज में संतुलन रखे। तो ये वृद्ध दंपतियों ने एक कागज पर लिख कर दी हमने जो संपादन किए पुण्यार्जन किए हम यहाँ रख रहे हैं। तो उन्होंने कुछ रुपया दी, वो वापस आ गई। उस समय तो हर 2-3 साल में कोई उस गांव से काशी में जाने का रहता था। तो उन्होंने उनके द्वारा चिट्ठी लेकर भेजे और पैसे भी दी। जितना उन्होंने लोन लिया था आपका पैसे हम वापस दे रहे, आप हमारा पुण्य आपके पास जो है उसको वापस दे दीजिए। और 4-5 महीने के बाद जो गए थे यात्री काशी के लिए वो वापस आए। एक पत्र भी आया जिन्होंने इनको लोन दिए थे उनसे, नहीं आपका पुण्य ही हम मुझे चाहिए, आपका पैसा हम वापस भेज रहे। लेकिन ये दंपतियों ने फिर पत्र भेजा ऐसा मत कीजिए, हमारा पूरा जीवन का ये पुण्य है, हमको वापस दे दीजिए। तो और 4-5 महीने के बाद काशी से एक पत्र आए आपका पुण्य आपको हम वापस दे रहे हैं। इन्हें ये जो श्रद्धा है कल्पना है वो तिरुपति बालाजी जी मंदिर के बारे में हो सकता है, काशी के बारे में हो सकता है, या अपने गांव में छोटा मंदिर जहां नित्य प्रतिनिधि केवल 1-2 लोग ही जाता है, ऐसा मंदिर के बारे में भी हमारा समाज में जो श्रद्धा है यही अपना आधार बनेगा। ये जो भी टेम्पल कनेक्ट का इतना बड़ा प्रयास हम जो कर रहे हैं उसका आधार है हमारा श्रद्धा। तो हमारा पूरा प्रयास से ये श्रद्धा भक्ति पुण्य इसके बारे में हमारा समाज में जो भी आज तक चलते आए उसको और भी सक्षम करने का सबल करने का अपना प्रयास होना चाहिए। ये पहला बात है। दूसरा है बहुत सारे सक्षम आर्थिक दृष्टि से सबल मंदिर हमारा पूरा देश में है, लेकिन वैसे ही हम देखें तो अपने गांव-गांव में जो मंदिर जिनके पास आर्थिक दृष्टि से उतना पैसा नहीं है, व्यवस्था के दृष्टि से भी बहुत कमजोर है, बहुत सारे मंदिर ऐसे भी है जहां नित्य पूजा वगैरह करने के लिए भी
मुश्किल है। यदि हमारा बड़े मंदिर, सक्षम मंदिर, जिनके पास आर्थिक स्थिति अच्छा है, कुछ ऐसे छोटे गांव में जो मंदिर है जिसके आधार पर उस गांव की श्रद्धा और पूज्य भाव समाज के बारे में, देश के बारे में, भगवान के बारे में सभी तरीके से सदैव जागृत रह सकता है, ऐसा छोटा छोटा मंदिर को कुछ व्यवस्था हमको करना है। ऐसा बहुत सारे उदाहरण है। स्वयं यहाँ के जिस पावन धरती पर हम सभी बैठे हैं, ऐसा ये तिरुपति बालाजी मंदिर, बहुत सारे ऐसा जो सक्षम नहीं है ऐसा मंदिरों को सहायता करते हैं और जिसके आधार पर ऐसा मंदिरों का पुनरुज्जीवन भी हुआ है। वैसे ही मैंने देखा हूँ कर्नाटक में एक धर्मस्थल ऐसा एक बहुत बड़ा मंदिर है, वो भी ऐसा छोटे गांवों में छोटे मंदिर जो भी है उसका पुनरुज्जीवन के लिए सहायता करते हैं। मुझे लगता है ये हमारा बड़े मंदिरों का, सक्षम मंदिरों का, सबल मंदिरों का, आर्थिक दृष्टि से जो मंदिर अच्छे स्थिति में, हम सभी का ये दायित्व रहता है ऐसे छोटे मंदिर जिसके श्रद्धा के आधार पर गांवों में जागृति हो सकता है, अपना सनातन संस्कृति का, मूल्यों का, हिंदू संस्कृति का, उसको हम सहायता करना है। तीसरा बिंदु मेरा है ऐसा मंदिरों का सामाजिक भूमिका। प्रभु जी ने सरसंघ चालक जी का संदेश तो हम सभी सुने। अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूज्य सरसंघ चालक मोहन जी भागवत एक 6 साल पहले हम सभी स्वयंसेवकों को और समाज में जो भी सक्रिय है ऐसा सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को एक आह्वान दिया। स्वतंत्र प्राप्ति के इतने साल के बाद भी हमारा देश में हजारों गांव ऐसा है जहां एक जल स्रोत से सभी को पानी नहीं मिलता है। मंदिरों में सभी जाति बिरादरियों का प्रवेश नहीं है और स्मशान में जिनको मृत्यु हुई उनको सभी जाति के लोगों को सम्मान पूर्वक अंत्यक्रिया का सम्मान भी नहीं मिलता है। कम से कम ये 3 विषय में, और बहुत सारे हमारा सामाजिक समस्याएं हैं, परंतु कम से कम ये 3 विषय लेकर क्या हम सभी कार्यरत हो सकते हैं क्या? जब टेम्पल कनेक्ट का, मंदिरों का पुनर्जीवन का और मंदिरों का प्रभाव बढ़ाने का बात आता है तो अपना मातृ समाज, हिंदू समाज, जिसमें ये मंदिर प्रवेश के लिए हजारों गांवों में स्वतंत्र प्राप्ति के इतना साल के बाद भी जो समस्या है, मुझे लगता है हम सभी समाज के बंधु, सरकार, सभी मिलकर हमको प्रयास करना पड़ता है। कम से कम गांव के मंदिर में सभी जाति मत पंथ वालों को मुक्त प्रवेश और एक जल स्रोत से सभी जाति मत पंथ वालों को पानी और गांव के स्मशान में जिनको मृत्यु हुआ है उनके लिए सम्मान पूर्वक अंत्यक्रिया जो आज नहीं है। मुझे लगता है मंदिर एक जागृति के केंद्र बनकर ये काम में भी हमको लगना चाहिए। इस चौथा, आज अभी प्रसाद जी ने टेक्नोलॉजी के विशेषता ये के बात की। मुझे लगता है ये टेक्नोलॉजी के इस दुनिया में, नया युग में बहुत सारे विषय में अपना मंदिरों का निर्वहन में, तीर्थयात्रियों का अनुभव बढ़ाने में और जिस समुदाय में अपना मंदिर है, जिस गांव में, जिस शहर में, वहाँ कम्युनिटी बिल्डिंग में, यानी समुदायों का विकास में, तीनों विषय में टेक्नोलॉजी को अच्छी तरीके से उपयोग करते हुए हम समुदाय का विकास के लिए, तीर्थयात्रियों का अनुभव अच्छे करने के लिए और मंदिरों का निर्वहन में, ऑपरेशंस में, कम्युनिटी बिल्डिंग में और पिलग्रिम्स एक्सपीरियंस में, तीनों विषय में टेक्नोलॉजी विशेषता आज ये का जो भी नया बहुत सारे तरीका आया है उसका उपयोग हम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए क्यू और फ्लो का जो भी मंदिरों में, बड़े मंदिरों में है,
आज ये के आधार पर उसका मैनेजमेंट हम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, या टेम्पल के बीच में एक लैंग्वेज ब्रिज का ये के आधार पर हम कर सकते हैं, जिसके आधार पर द एक्सचेंज बिटवीन द टेम्पल्स अबाउट द अरेंजमेंट्स, मैनेजमेंट एंड आल्सो कस्टम्स, वो स्वयं अनुवाद करके, यानी ये का आज का जो भी बहुत सारे अनुकूलता उपलब्ध है उसके आधार पर हम कर सकते हैं। इस उतना ही नहीं, अपना कम्युनिटी बिल्डिंग में उदाहरण के लिए आज बहुत सारे मंदिर सेवा कार्य में लगे हैं। शिक्षा क्षेत्र में हो सकता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो सकता है, या बाकी भी उस समुदाय के लिए जो भी चाहे, तो जो डोनर है उनको जो चाहिए उसके आधार पर, यानी उसके लिए ये के आधार पर हम ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी आ सकता है, जिसके लिए फंड्स आ रहे हैं उसका उपयोग किस तरह से हो रहे हैं, उसका पूरा डिजाइन, मैनेजमेंट और क्रियान्वयन, ये तीनों आज ये के आधार पर हम कर सकते हैं। ऐसा लगभग 20-25 तरीके का उपयोगिता ये के आधार पर मंदिरों के लिए आज हम कर सकते हैं। समय के कमी होने के कारण सभी में मैं नहीं जा रहा हूं, परंतु आज टेक्नोलॉजी ये और इसके रिलेटेड बहुत सारे विषय हमारे लिए हम उपयोग कर सकते हैं। मुझे लगता है ये टेम्पल कनेक्ट का चिंतन और उसका क्रियान्वयन में लगे हुए अपने पूरे टीम जो है, ये सारे विषय पर ध्यान देते हुए बहुत सारे विषय में हम आगे बढ़ रहे, आगामी दिनों में और भी आगे हम बढ़ सकते हैं। इसके लिए समाज का सहायता चाहिए, सरकारों का सहायता चाहिए, और पूज्य देवगिरी महाराज जी के ऐसे लोगों का आशीर्वचन भी चाहिए। सभी आज अपना मंच पर उपस्थित है। गोविंदगिरी महाराज जी का आशीर्वचन, तीनों मुख्यमंत्रियों का इसमें सहायता, और हम सभी समाज के बंधु, एनजीओस, टेम्पल मैनेजमेंट, हम सभी मिलकर ऐसा ये बहुत बड़ा काम जो है इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। इस सबके लिए मेरा इतना ही प्रार्थना है, हम सभी इसमें हाथ जोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच श्री C.R. मुकुंदा जी। आपकी गाइडेंस हमारे देश की संस्कृति और विचारधारा को आगे बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका सादर धन्यवाद। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे हार्दिक हर्ष हो रहा है ये बताते हुए कि हमारे चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर एंड द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत जी अब अपने विचार हमारे साथ साझा करेंगे। उनकी गवर्नमेंट की समझ और ट्रेडिशन, मॉडर्निटी को साथ में लेकर आगे चलने की सोच उन्हें आज के इवेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्पीकर बनाती है। We are excited to hear his insights on how temples and spiritual centers can play a big role in sharing a brighter future for all. Please join me in welcoming Dr. Pramod Sawant ji, Honorable Chief Minister of Goa, for a special address. Welcome, sir. बहुत-बहुत स्वागत। नमस्ते। वेंकटरमणा श्री गोविंदा गोविंदा। इस मंदिर के इस महाकुंभ सम्मिलित विश्व भर के मंदिर, मठ, संस्थानों के मुख्य पुजारी, महंत, मंदिर व्यवस्थापन क्षेत्र में सभी एक्सपर्ट यहाँ पे आए हैं, उनका सबसे पहले मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम पे मंच पे बैठे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, हमें यह आशीर्वचन देने के लिए आए श्री गोविंदगिरी महाराज जी, और इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले
मेरे मित्र श्री प्रसाद जी और व्यासपीठ पे बैठे बाकी सभी मंत्रीगण, उपस्थित में बैठे सभी महंत, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। सबसे पहले मैं आप लोग को एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे साथ बोलिए भारत माता की, गो माता की, वंदे। देव, धर्म और देश, इसी के साथ साथ हम आज इस मंदिर का महाकुंभ जो यहाँ पे आयोजन किया है, इस महाकुंभ में फिर एक बार मैं देव, धर्म, देश की बात कर रहा हूं। इसीलिए जब देव शाबुत रहेंगे, धर्म शाबुत रहेगा, तभी देश शाबुत रह सकता है। हमारे परंपरागत राजाधिराज जो सभी छत्रपति शिवाजी महाराज से लेके जितने सारे राजा इस हिंदुस्तान में होकर गए हैं, इन सभी राजाओं ने देव, धर्म और देश इनका हमेशा के लिए पालन किया। इसीलिए इस सनातन हिंदू धर्म हम आज के इस पावन पर्व पर देख रहे हैं। आपने इतिहास देखा तो सभी को पता होगा कि इस सनातन हिंदू धर्म में सबसे बड़ा योगदान किसी का रहेगा तो हिंदुओं के राजाओं का रहेगा, जिन्होंने हिंदवी स्वराज्य संस्थापन किया। उस छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ महाराष्ट्र पर नहीं है तो पूरे देश भर में हिंदू साम्राज्य स्थापन करने का सपना किसी ने देखा तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने। तो इस अवसर पर मैं आज बस इतना ही कहना चाहूंगा, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मुगलों ने, अफजलों ने, इंग्रजों ने, पुर्तगालों ने, डच ने हमारा मंदिरों का उद्ध्वस्त करने का काम तब किया था, और मंदिरों का पुनर्निर्माण करने का काम किसी ने किया तो छत्रपति शिवाजी महाराज से लेके सभी हिंदू राजाओं ने किया। इसीलिए आज सभी मंदिर शाबुत हैं। और आज के इस अवसर पर जहां प्रयागराज में हम महाकुंभ मना रहे और यहाँ पे हम ये टेम्पल कन्वेंशन का महाकुंभ यहाँ मना रहे, ये भाग्य की बात है। ये हम सब इस भारत देश में जो विविधता से, एकता से जुड़े हुए हैं। हर राज्य में भाषा अलग है, हर राज्य में वेश अलग है, हर राज्य में संस्कृति अलग है, लेकिन हम सभी को एक ही संस्कृति पता चलती है, वो है हमारे टेम्पल संस्कृति। इस टेम्पल संस्कृति से हम सब जुड़े हुए हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि हम एक हैं तो सेफ है। चाहे हमारी भाषा अलग हो, चाहे हमारा वेश अलग हो, लेकिन हमें एक है तो ही हम सेफ हो सकते हैं। इस टेम्पल कन्वेंशन से हम आध्यात्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक उन्नति का केंद्र हम सब यहाँ पे बना चुके हैं। मैं इस डायरेक्टली जब मैं परशुराम भूमि, गोमंत भूमि से आता हूँ, जो गौ माता की भूमि है, मैं बताते वक्त मुझे हर्ष है कि हमारे आज भी गोवा में गौ माता के रक्षण करने के लिए 80 रुपीस पर डे पर काव इस किसानों को दिया जाता है। ये गोमंत भूमि है। जो गोमंत भूमि सन, सैंड और सी, इससे ही नहीं लेकिन सन, सैंड, सी और स्पिरिचुअलिटी से जानी जाती है, वहां पे भी बहुत बड़े से बड़े टेम्पल वहां पे भी हैं। वहां पे कदम्बकालीन राजा ने जो टेम्पल बना के रखे थे, वो उद्ध्वस्त करने का काम किसी ने किया तो पुर्तगालों ने किया। हम आज भी वहां के छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति शंभूराजे संभाजी महाराज, इनको याद करते हैं। गोवा की हिंदू संस्कृति, सनातन हिंदू धर्म गोवा में शाबुत है और गोवा में के टेम्पल आज भी वहां पे शाबुत है, तो फक्त और सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी राजे के लिए। मुझे भाग्यशाली समझता हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज ने सप्तकोटेश्वर का मंदिर का जो पुनर्निर्माण किया था 350 साल पहले, वही छत्रपति शिवाजी महाराज का मंदिर फिर एक बार लोकार्पण करने का योग किसे मिला तो वो मुझे मिला। ये मुझे परम भाग्य है। मैं
ज्यादा जानते न हुए मैं बताऊंगा कि गोवा के पुण्य भूमि में देवी शांतादुर्गा का स्मरण होता है। गोवा के पुण्य भूमि में देवी सातेरी को प्रणाम करते हैं। निसर्ग को हम हमेशा के लिए पूजते आए हैं। वहाँ पेड़ों का पूजन होता है, वहाँ सातेरी मातों का पूजन होता है। मैं स्वागत करूंगा जो गोवा से यहाँ पे आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करूंगा। गोवा के बेस्ट प्रैक्टिस वो यहाँ के आए हुए सभी लोगों से शेयर करें और सभी लोगों के साथ जो गोवा में जितने सारे लोग वहाँ पे आते हैं वो बड़ी श्रद्धा की भावना से, बड़ी आस्था की भावना से बीचेस तो देखते ही हैं लेकिन टेंपल में जाना भी पसंद करते हैं। वही टेंपल में जाने के लिए और भी वहाँ पे अलग अलग से ज़्यादा लोग वहाँ पे आए और टेंपल में जाए, यही मैं आस्था रखूंगा। मैं ज़्यादा ना बात करते हुए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो उन्होंने इस विरासत भी और विकास भी ये सपना इस भारत देश को दिखाया। मैं बोलता हूं कि विरासत भी और विकास भी। विरासत इसीलिए 500 साल पुराना मंदिर रामलल्ला को राम मंदिर में बिठाने का काम किसी ने किया तो मोदी जी ने किया और किसी ने नहीं किया। इसीलिए इन्हें विरासत के साथ साथ विकास करने का काम हम जो बोलते हैं कि केदारनाथ का कॉरिडोर हो, उज्जैन महाकाल का कॉरिडोर हो, सोमनाथ द्वारका का विस्तार हो, तो किसी ने किया है इस देश में। 75 साल बाद आजादी मिलने के बाद हमें 75 साल लगे रामलल्ला के मंदिर में बिठाने के लिए। यही तो यानी विरासत और विकास हम दोनों साथ में लेके चलते हैं। और इस टेंपल कन्वेंशन को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि सही में कि ये टेंपल कन्वेंशन मुझे लगता है कि पूरे देशवासियों को मार्गदर्शन रहेगा। प्रसाद जी, मैं आप और आपके टीम का बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इसी तरह से हमने एक रहना उचित है। हम एक रहे तो इससे आगे भी हमारे देश में ही नहीं विदेश में टेंपल बनने लगे हैं। ये तो सनातन हिंदू धर्म की जय है। यही तो सनातन हिंदू धर्म आज पूरे देश में जा रहा है। मैं जाते जाते एक ही पंक्ति कहूंगा और मेरे वाणी को विराम दूंगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदान्य सृजान्मयम्। जब जब धर्म का क्षय होता है तब तब पुनरुत्थान के लिए भगवान का अवतार होता है। और अभी 10 साल में आप देखो फिर एक बार सनातन धर्म अपने देश में फिर एक बार बड़ी मात्रा से आगे आने लगा है। यही तो सनातन धर्म की जय हो। फिर एक बार मेरे साथ में बोलो, भारत माता की, गो माता की, सनातन हिंदू धर्म की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। A big thank you to you, sir, Honorable Chief Minister of Goa and our Chief Guest of Honor, Dr. Pramod Sawant जी, आपके विचारों और आपकी गाइडेंस के लिए। अब आगे बढ़ते हुए हम बुलाना चाहेंगे our Chief Guest of Honor, the Honorable Chief Minister of Maharashtra, श्री देवेंद्र फडणवीस जी को। इनकी लीडरशिप का प्रभाव महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे देश में दिखाई देता है। Today we are honored to have him with us. प्लीज स्वागत कीजिए श्री देवेंद्र फडणवीस जी का। वेंकटरमणा, श्रीनिवासा, बोल सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बोलो जी भाई सब संतन की, सनातन हिंदू धर्म की, गौ माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। मंच पर उपस्थित आंध्र प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री और जिनको एक रोल मॉडल के रूप में पूरे देश में जाना जाता है, ऐसे आदरणीय चंद्रबाबू नायडू जी, मेरे साथी और गोवा के
युवा और उनकी ऊर्जा और उनका ओज अभी हमने देखा है, ऐसे गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी हमारे बीच मंच पर उपस्थित आदरणीय गोविंद देव गिरी महाराज जी, आदरणीय CR मुकुंदा जी, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाइक जी, आशीष शेलार जी, श्री प्रसाद लाड़ जी, गिरीश कुलकर्णी जी, मेघना बोर्डीकर जी, विश्वजीत राणे जी, रोहन खौटे जी, श्री A सत्यप्रकाश जी, श्री BR नायडू जी, श्री प्रवीण दरेकर जी, श्रीमती नीता लाड़, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और इस सभागार में उपस्थित भारत के हर राज्य से और दुनिया के भी 17 देशों से पधारे हुए सभी हमारे मंदिरों का कार्यभार वहन करने वाले बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले हमारे इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेंशन की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने तिरुपति की इस पावन नगरी में ये दूसरा कन्वेंशन आयोजित किया और हम सभी को यह अवसर दिया कि भगवान बालाजी का दर्शन भी हम ले और देश में जो सबसे अच्छे तरीके से मैनेज होता है, जिसके प्रबंधन को लोग समझना चाहते हैं, ऐसे तिरुपति देवस्थानम को भी हम लोग जाकर दर्शन ले पाए। और ये भी मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत अच्छा योग है कि ये जो कन्वेंशन हो रहा है राजमाता अहिल्या देवी होळकर इनकी 300वीं जन्मशती के अवसर पर हो रहा है। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे सनातन मंदिरों को विदेशी आक्रांताओं ने ध्वस्त किया और एक प्रकार से जब हमारी आस्था को ठेस पहुंची थी, उस समय पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक राजमाता अहिल्या देवी होळकर एक ऐसी व्यक्ति थी जिन्होंने हमारे मंदिरों का, घाटों का, पूजा स्थलों का पुनरुज्जीवन किया और फिर एक बार हमारी आस्था को जीवित करने का काम उन्होंने किया, जिसका उल्लेख प्रमोद सावंत जी ने किया। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद पूरे देश में हमारे मंदिरों को पुनरुज्जीवित करने वाली ऐसी अहिल्या देवी के 300वें साल ये कार्यक्रम हो रहा है। ये बहुत हम सभी के लिए हर्ष की बात है और ये एक ऐसा समय है जब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश में सांस्कृतिक पुनरुत्थान का एक यज्ञ शुरू किया है और फिर एक बार इस देश के लोग अपने आप को सनातनी कहते हुए गर्व महसूस करते हैं। इस प्रकार की ये बेला है। ऐसे समय हम सब लोग यहां पर एकत्रित आए हैं। आज प्रयाग में महाकुंभ चल रहा है। 50 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने महाकुंभ में जाकर स्नान किया है। दुनिया के देश अचंभित हैं। पूरे यूरोप की जनसंख्या से भी ज्यादा लोग, पूरे अमेरिका की जनसंख्या से भी ज्यादा लोग ये वहां पर जाकर भक्ति भाव के साथ स्नान करके आए। और सबसे बड़ी बात हमारे सनातन की वहां क्या देखने को मिल रही है
कोई किसी को जाति नहीं पूछता, कोई किसी को भाषा नहीं पूछता, कोई किसी को प्रांत नहीं पूछता, कोई किसी को पंथ नहीं पूछता। हम सब एक है, सब सनातन के सेवक है। इस रूप में वहां पर यह कुंभ चल रहा है। आज हम सनातन की जब बात करते हैं तो सनातन का अर्थ क्या है? एक ऐसी जीवन पद्धति जो प्राचीन काल से चलते आ रही है, जिस जीवन पद्धति को कोई मिटा नहीं पाया, जो जीवन पद्धति कभी समाप्त नहीं हो सकती, इसलिए वो सनातन है, क्योंकि वो शाश्वत है। इस प्रकार की जीवन पद्धति हमारी भारतीय जीवन पद्धति है। इस जीवन पद्धति ने निर्गुण निराकार को भी, सगुण साकार को भी, कोई भी पूजा पद्धति हो, कोई भी पंथ हो, सभी को साथ में लेकर हमारे आदर्शों को तैयार किया है। इसीलिए ये भारत देश आज इतनी विविधताओं के बावजूद भी एक साथ, एक माला की तरह, एक धागे में बंधा हुआ है, क्योंकि हम सब सनातनी हैं। और आज हम देख सकते, हम दक्षिण भारत में हैं, और दक्षिण भारत में तो जिस प्रकार के मंदिर हमको दिखाई पड़ते हैं, चाहे वो चोल साम्राज्य से तैयार हुए मंदिर हो, कृष्णदेव राय ने तैयार किए हुए मंदिर हो, या आधुनिक काल में तैयार हुए मंदिर हो, मैं ऐसा मानता हूं कि दक्षिण भारत के मंदिर ये स्थापत्य शास्त्र के ऐसे जीते जागते उदाहरण है कि दुनिया भी अचंभित हो जाती है जब ये देखती है कि किस प्रकार से हजारों हजारों साल पहले न कोई मशीन थी, न कोई क्रेन थी, फिर भी इतने सुंदर मंदिर यहां पर बनाए गए। और हमारे देश में कहीं पर भी जाइए, आप ईस्ट में चले जाइए, आप पश्चिम में चले जाइए, आप पूरब में चले जाइए, उत्तर में चले जाइए, हम सभी को हमारे मंदिरों से प्रेरणा मिलती है। और इसीलिए ये आवश्यक भी है कि ये जो मंदिर है, ये केवल आस्था के प्रतीक नहीं है, हमारे समाज जीवन का अभिन्न अंग हमारे मंदिर है। हमारे समाज जीवन को हजारों सालों तक जिन्होंने मार्गदर्शन दिया, ऐसे हमारे मंदिर है। ये हमारे पूजा के स्थल तो है ही, लेकिन सामाजिक परिवर्तन के स्थल है, ये हमारे शिक्षा के स्थल है। अंग्रेजों ने लिखकर रखा है कि जिस समय अंग्रेज मद्रास प्रेसिडेंसी में आए, उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी में जो मंदिर हुआ करते थे, इन मंदिरों में 50,000 संस्कृत विद्यालय चलते थे, और पूरे इंग्लैंड में केवल 2,000 ग्रामर स्कूल उस समय थी। इस प्रकार से हमारे मंदिरों ने शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया है। हम जानते हैं काशी ये विद्या नगरी रही है। काशी में हमारे पंडितों ने, काशी के विद्वानों ने न केवल धर्मशास्त्र, बल्कि चाहे वो स्थापत्य शास्त्र हो, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, ये सारी की सारी विधाओं को, सारी विद्याओं को वहां पर जीवित रखने का काम किया, क्योंकि हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में हमारे मंदिरों की एक अभिन्न भूमिका रही है। और इसी के चलते आज हम लोग जब इस टेम्पल कन्वेंशन में बैठे हैं, तो मैं बहुत बधाई दूंगा जिन 10 बिंदुओं के ऊपर ये टेम्पल कन्वेंशन काम कर रहा है, क्योंकि एक बड़ी अर्थव्यवस्था भी हमारे मंदिरों के माध्यम से होती है। एक सर्वे कहता है हमारे 55% भारतीय ये केवल धर्म के लिए पर्यटन करते हैं, केवल धर्म के लिए पर्यटन 55%। तो समझ लीजिए कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था को एक प्रकार से गति देने का काम हमारे मंदिरों के माध्यम से होता है। और उसके साथ साथ यहाँ पर जहाँ एक और अर्थव्यवस्था का विषय है, वहीं हमारे मंदिरों का व्यवस्थापन उचित तरीके से हो, वो श्रद्धा के केंद्र तो बने रहे, लेकिन साथ साथ समाज को
एक साथ मिलकर समरसता के केंद्र भी हमारे मंदिर बने। जो हमारे CR मुकुंदा जी ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी जीत वो होगी जिस समय हमारे मंदिर ये जैसे सनातन के समय, पुरातन के समय समरसता के केंद्र हुआ करते थे, वैसे ही समरसता के केंद्र हमारे मंदिरों को बनाना, ये भी हमारे टेम्पल कन्वेंशन की एक बहुत अहम इस प्रकार की भूमिका होगी। साथ साथ आज जिस प्रकार से अलग अलग चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं, चाहे वो वित्तीय व्यवस्थापन हो, चाहे अलग अलग प्रकार का व्यवस्थापन हो, उसके लिए भी सभी लोगों को प्रशिक्षण मिले, नई टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षण मिले, उसका हम लोग उपयोग कर पाए, क्राउड कंट्रोल हम लोग ठीक से कर पाए, आने वाले जो भक्त हैं उनको वहां पर जिस प्रकार का विचार लेकर वो मन में आते हैं, जिस प्रकार से एक भक्ति भाव लेकर वो आते हैं, उस भक्ति भाव को वो संजो पाए, इस प्रकार का काम इस टेम्पल कनेक्ट के माध्यम से हम लोग करना चाहते हैं। और मुझे खुशी है, ये जो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी तैयार हो रही है, सनातन के विचारों से प्रेरित सभी जो मंदिर है इनको एक साथ लाकर ये जो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी तैयार हो रही है, ये निश्चित रूप से आने वाले दिनों में एक हमारे सारे मंदिरों को एक नई राह दिखाएंगी, एक नए विकास की ओर ले जाएंगी। और मेरा विश्वास है आज देश में हम लोग देखते हैं, चाहे वो तिरुपति का मंदिर हो या महाराष्ट्र में गजानन महाराज का मंदिर हो, एक सरकारी ट्रस्ट है जो इतना सुंदर चलता है, दूसरा प्राइवेट ट्रस्ट है वो भी सुंदर चलता है। तो एक प्रकार से ये जो अच्छा चलाने वाले लोग हैं इनसे हम लोग सीखें और हम अपने मंदिरों को अच्छे तरीके से यहाँ पर चलाएं, ताकि मंदिर ये समाज परिवर्तन का केंद्र हो, ये समाज एकत्रीकरण का केंद्र हो, ये सामाजिक अभिसरण का केंद्र हो। इस प्रकार का प्रयास इस माध्यम से हम लोग करने वाले हैं। मैं आज अधिक समय नहीं लूंगा, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं टेम्पल कन्वेंशन की इस पूरी टीम को जिन्होंने ये पहल की है। और मेरा विश्वास है आने वाले दिनों में ये पहल और बड़ी होगी और बड़े पैमाने पर हमारे सारे मंदिर इसमें जुड़ेंगे और सनातन को एक नई राह पर ले जाने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you to Honorable Chief Minister Maharashtra Shri Devendra Fadnavis ji for sharing your vision with us today. सांस्कृतिक संस्करण और विकास का जो मेल बंधन आपने किया है वो हम सबको एक बेहतर कल प्रदान करेगा। Your leadership continues to be the beacon of progress and innovation, and we are immensely grateful for your valuable contribution today. Ladies and gentlemen, let's have another round of applause for Honorable Chief Minister of Maharashtra Shri Devendra Fadnavis ji. Next, ladies and gentlemen, is the time to hear a very special address. अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय आध्यात्मिक गुरु एवं विद्वान श्री आचार्य गोविंद देव गिरि जी महाराज। इनका स्वागत करें, यह हमारे लिए एक परम सौभाग्य है। वेदों का गहन ज्ञान के साथ साथ आजीवन सेवा की निष्ठा का सम्मेलन, अनमोल विचारों के वहां होंगे, इनमें कोई आश्चर्य नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, देवियों और सज्जनों, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्री आचार्य गोविंद देव गिरि जी महाराज जी का ITCX 2025 के इस भव्य समारोह में। यह हमारा खुशनसीबी है कि आज हम आचार्य जी का संबोधन इस मंच से सुनेंगे। स्वागत है आपका आचार्य जी। आपदामपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम। भगवान वेंकटेश्वर की इस छत्र छाया में आज सबसे पहले मैं बाकी सारी औपचारिकताओं को दूर रख करके उन सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं जो लोग
कुछ दशकों से मंदिरों का संगठन खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं और जिन्होंने यह सुंदर दृश्य हमारे सामने खड़ा किया है। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू जी का कि उन्होंने टेक्नोलॉजी की मास्टर की तो दे दी, लेकिन साथ साथ टेम्पल मैनेजमेंट में भी उन्होंने एक बहुत नया योगदान हम लोगों को दिया है। उनके आतिथ्य में आज इतना सुंदर यह कार्य होते समय मैं यहां पर उपस्थित रह सका, इसका मुझे बहुत आनंद है। मित्रों, हमारे मंदिर ये प्रार्थना स्थल नहीं है। हमारे मंदिर ये भगवान के घर होते हैं, भगवान के निवास स्थान होते हैं। उनको हम देवालय कहते हैं। प्रार्थना कहीं पर भी की जा सकती है, लेकिन पूजा तो देवालय में जाकर के ही करनी पड़ती है, अथवा जहां हम बैठते हैं वहां पर उसका आवाहन करना पड़ता है। और इसलिए हमारे ये मंदिर, यह हमारी प्राचीन सनातन संस्कृति आज तक जो बची रही और जो निश्चित रूप से सर्वदा बची रहेगी, उसकी अत्यंत महत्वपूर्ण आधारशिला हमारे ये मंदिर है। हमारे मंदिरों के कारण जो ऊर्जा समाज को प्राप्त होती है, उस ऊर्जा पर यह समाज जीता है। एक समय था बीच में जब ये देश गरीब कहलाता था, जब ये देश लोगों से कटोरा ले ले करके धान्य मांग करके और अपना पेट भरता था, लेकिन उन सारे प्रसंगों को भी पार करके पुनः यह देश अब सारे संसार में अग्रस्थान पर जाने की अब जो तैयारी कर रहा है, उसका मूल कारण यह आस्था है जो हमारी मंदिरों में है। हमारे मंदिरों ने किस प्रकार की ऊर्जा निर्माण की, उस ऊर्जा का दर्शन आज कुंभ मेले में कोई भी जाकर के कर सकता है। और इस सनातन ऊर्जा को बनाए रखने के लिए जो पावर हाउसेस स्थान स्थान पर हमारे पूर्वजों ने निर्माण किए, वे ही मंदिर कहलाए, वे ही देवालय कहलाए। इन देवालयों ने हमें क्या नहीं दिया। ध्यान रखना, हमारे देश की कला, हमारे देश का संगीत, हमारे देश का आयुर्वेद, हमारे देश की क्रीड़ा, हमारे देश का नाट्य, काव्य, नृत्य, ये सब बचा, वो मंदिरों को केंद्र में रख करके बचा है। मंदिर ही इन सब बातों के पोषक रहे हैं। इसलिए हमारी संस्कृति के पोषण का कार्य इन मंदिरों ने किया और इन मंदिरों ने समरसता का अत्यंत बड़ा उदाहरण तो रखा ही रखा, शिक्षा का उदाहरण तो रखा ही रखा, लेकिन इन मंदिरों ने जिस प्रकार की प्रेरणा दी, उस प्रेरणा के कारण अत्यल्प आवश्यकताओं को पूर्ण करके भी संपूर्ण जीवन समाज के लिए उत्सर्ग करने वाले हम लोगों को अनेक अनेक साधु संत महात्मा कार्यकर्ता दिए। और आप आज देखिए, हम बात लंबी करने का समय नहीं है। हम कुंभ में साधुओं की पलटनें देख रहे थे। हम नागा साधुओं के लिए विशेष आकृष्ट हो रहे थे। क्या था ये नागा परंपरा? भगवान आदि शंकराचार्य महाराज ने किस लिए निर्माण की? अत्यल्प आवश्यकताओं की पूर्ति करके भी समाज के लिए युद्ध करने वाला जो साधु था, उसका नाम नागा था। ध्यान रखना, जब आवश्यकता पड़ेगी तो हमें कैसे सैनिक चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज जीत सके, इसका मुख्य कारण यह था, उनके सैनिकों की आवश्यकताएं अत्यल्प थी और वे देवर वेरी स्विफ्ट, कहीं पर भी दौड़ करके जाते थे। भगवान आदि शंकराचार्य महाराज ने यह अत्यल्प आवश्यकताओं को पूर्ण करके भी अपने प्राणों को न्योछावर करने की तैयारी रखने वाले नागाओं को निर्माण किया। यह सब श्रद्धा का परिणाम है। यह राष्ट्र श्रद्धा के ऊपर जीता है। यह राष्ट्र धर्म को अपना मुख्य प्राण बना करके जीता है। मंदिर हमारे इस संस्कृति के प्राण तत्व है, इसको ध्यान रखना चाहिए। और इसलिए इनमें किस किस प्रकार का आपको प्रबंधन करना है, इसके बारे में बतलाने वाले लोग आपको बहुत सारे मिलेंगे। लेकिन मैं एक बात आपको बतला दूंगा, वो जो बतलाना मैं आवश्यक मानता हूं, जो मेरा कर्तव्य मैं मानता हूं, मंदिरों को आप अच्छी तरह से प्रबंधित कीजिए,
तीर्थ स्थलों का विकास भी कीजिए, लेकिन तीर्थ स्थलों की संस्कृति को आप 5 स्टार कल्चर मत बनाइए, मंदिरों का पावित्र्य बचने दीजिए। धन्य है ये तिरुपति देवस्थान, तिरुमला का स्थान, जहां पर प्लास्टिक की बोतल तक हम लोगों को नहीं मिली है। इन लोगों का कितना कितना आभार व्यक्त करना मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है। कहां कहां से प्रदूषण हो सकता है, उस हर स्थान को उस स्थान से दूर करना, उस हर वस्तु को उस स्थान से दूर करना यह आवश्यक है। हमारे केदारनाथ में जो आपदा हुई थी मित्रों, उस समय जो कुछ पता चला, ध्यान में ये आया कि केदारनाथ की कल्चर को भी हम लोगों ने 5 स्टार कल्चर बनाना आरंभ कर दिया था। तो हम विकास तो करें, प्रबंधन तो अच्छा करें, उसके उपयोगिता का लाभ सारे समाज को मिलना चाहिए। समाज की ऊर्जा पर मंदिर चलेंगे और मंदिरों से ऊर्जा समाज प्राप्त करेगा। दे आर रेसिप्रोकली रिलेटेड, और इस प्रकार परंपरा चलती रहेगी। और ये सब करने के लिए एक अत्यंत आवश्यक बात है। मुझे आश्चर्य है, आज इस पूरी सभा में एक बात का उल्लेख किसने किया नहीं किया मेरा ध्यान कदाचित नहीं गया होगा, लेकिन एक बात का मैं उल्लेख करना चाहता हूं। मंदिरों के ऊपर मंदिरों के भक्तों का नियंत्रण होना चाहिए, शासन का नियंत्रण मंदिरों के ऊपर नहीं होना चाहिए। ये सारे व्यवस्थापन ठीक चल रहा है कि नहीं, इसके ऊपर नियंत्रण तो शासन का ही होना चाहिए, लेकिन प्रत्यक्ष उसके ऊपर वहां पर शासन का नियंत्रण ऐसा नहीं होना चाहिए, ताकि मंदिरों के धन को अन्यत्र किसी भी काम में व्यय किया जा सके। मैं बहुत लंबी बात यहां पर करना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैंने कुछ वर्ष पहले सारे आंकड़े निकाले थे, कहां कहां जाता है ये धन और उसका क्या क्या दुरुपयोग भी होता है। और इसलिए हिंदू मनी फॉर हिंदू कॉज, ये हमारा स्लोगन होना चाहिए। इसका पुनरुच्चार करना मुझे आवश्यकता है, लगता है दैट इज माई ड्यूटी एंड आई मस्ट परफॉर्म इट। मित्रों, हम भारत माता के पुत्र हैं और ये मंदिर भारत माता के अंग है, और भारत माता के इन अंगों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हमारे मंदिरों की रक्षा करने के लिए हमारी परंपरा प्राणार्पण करने को कैसे तैयार रही, इसका जीवंत उदाहरण, सबसे जीवंत उदाहरण हमारा अयोध्या का श्री राम मंदिर है। 5 शतकों तक लोग लड़ते रहे, लाखों की संख्या में कटते रहे, लेकिन आखिर राम जी का मंदिर वहां पर बना करके थमे। यह राम जी के मंदिर का निर्माण केवल श्री राम के मंदिर का निर्माण नहीं है, यह हमारे राष्ट्र की अस्मिता का निर्माण है। और इसलिए अब सब मंदिरों का निर्माण होगा। यहाँ पर मुझे पता नहीं है, जिसे आप लोग पाकिस्तान कहते हैं, वहां के हिंगलाज देवी के मंदिर से कोई आया है कि नहीं, मुझे पता नहीं है। जिसे आप बांग्लादेश कहते हैं, वहां के ढाकेश्वरी के मंदिर से कोई आया है कि नहीं, पता नहीं, लेकिन वो भी आने चाहिए। हमें वहां जाना चाहिए। हमें इस देश को एक अखंड भारत के रूप में देखने का सपना कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। भारत अखंड रहेगा, भारत समर्थ रहेगा तो संसार सुखी रहेगा। ध्यान रखना, संसार के मांगल्य के लिए भारत के समर्थ होने की आवश्यकता है, और भारत के समर्थ होने के लिए मंदिरों के अधिक समर्थ होने की आवश्यकता है, और मंदिरों के अधिक समर्थ होने के लिए आप जैसे लोगों को इस प्रकार यहां पर मिल करके अनेक बार 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 मिल करके इस अलख को जगाने की आवश्यकता है। आप सभी को धन्यवाद। भारत माता की जय।